Hello, friends. I hope you guys are doing well. And here in this session, we will be discussing about the important dates of Army Institute of Law. And this exam is going to be held on 24th of May 2025. So basically, we will discuss the prospectus in this video, and I will let you know about all the details with regards to seats distribution and the exam. So without wasting any further time, let's start the session. So this is the prospectus which is uploaded on their website. You guys can also see this on their website only. And here you can see the important dates. See, so on 25th of March आपका portal जो है वो खुल गया है 25th of March से and it will be open till 26th of April. But for that you have to pay a sum of 3,300 for after the completion of your examination form. So इतना आपको pay करना है. This is same for all the categories, that is all India general category and Indian Army. So both the categories have to pay this much amount. But if you are paying if you are filling the form late by 1st of May only, that is also the deadline for that also is 1st of May. With then in that case you have to pay the additional late fee, which is the sum of rupees 1,000. So then you have to pay 4,300. So without wasting your time, you guys should fill the exam form early and should pay this much amount as has been notified by them. Other than this, the editing option will be open on the portal from 3rd of May to 6th of May. And during this time period, you guys cannot change your personal details like mail ID or contact number. You can only change your further details like educational and qualification details or something related to uploading of your documents, but not the main personal details on which through which they are contacting you. Okay, so remember this point. Then you guys can download your admit card from 14th of May to 24th of May, and the exam date is 24th of May. That will be Saturday, 2025, and the exam timings are also given here 9 a.m. to 11 a.m. तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा. 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं इस एग्जाम में or there is no negative marking. So I will suggest to each and every student to mark all the questions to give answer to all the 200 questions because there is no negative marking. Okay. Then online declaration of result will be there on 3rd of June 2025. So 3rd of June को आपका results आ जाएंगे and you guys will get to know कि आप AIL में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं. After that जो भी procedure होगा that will be notified later on their website only. Okay, तो उसके बाद basically होता ये है कि counseling होती है. Counseling से पहले आपकी जी मीट होती है. जी मीट के थ्रू वो आपका एक काइंड ऑफ इंट्रो लेते हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट द गाइस डू इज दे कॉल यू at the institute only for the offline counseling, and there you guys do the counseling on the basis of your documents. After the verification you guys get admission there, and from then and there you guys can start living in the institute or you can move later on. तो ये पूरा प्रोसीजर होता है वहाँ पर. हॉस्टल वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फुलफिल करा दी जाती है ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे जब वो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग होती है स्टूडेंट की. ये इन्होंने बताया है कि दैट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन, तो ये बता दी जाएगी. उससे पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग कम एडमिशन होगा ये जीमीट के थ्रू होता है और इसमें एक एक बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं जो भी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट के. तो ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर होता है. उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की अगर नीड होती है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट्स कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं या कुछ न्यू बच्चे आने होते हैं, देन आपकी सेकंड काउंसलिंग भी होती है. उसके लिए भी डेट नोटिफाई कर दी जाती है और पर्सनली बच्चे के पास मेल भेजा जाता है जो कि like the candidate who is deserving get this mail about this notification, and then he can be called on he has to report there at the institute. So other notes is also given here, and what is written is that it is mandatory for those candidates who are shortlisted as per the merit of let for counseling to deposit an amount of rupees 15,000 as the registration fee along with the willingness certificate prior to the date of counseling.
तो जैसे आपका 3rd ऑफ जून का रिजल्ट आ गया है, 3rd ऑफ जून से आपकी जो काउंसलिंग की डेट है, उसके बीच जो टाइम पीरियड होता है, इन दैट टाइम पीरियड all the students who got listed or shortlisted in the LET examination for the counseling process have to pay an amount of rupees 15,000 as a registration fee along with the willingness certificate. तो ये आपको पे करना होता है। अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये काउंसलिंग से पहले सम आपको पे करना है। काउंसलिंग के बाद जो आपको पे करना होता है, उसकी भी एक डेट फिक्स की जाती है कि आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस एक साथ पे करनी होती है अलॉन्ग विद द हॉस्टल फीस। उसकी एक डेडलाइन होती है एंड बाय दैट डेडलाइन आपको वो फी पे करनी होती है, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है that the admitted students will be required to submit the original documents to the institute on the day of reporting to the institute which will be intimated to them after the counseling. As I told you earlier कि पहले आपकी काउंसलिंग जीमीट पर होगी, आफ्टर दैट आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, उसकी एक डेट आएगी एंड बाय दैट डेट यू गाइज शुड बी रेडी विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके सबमिट होंगे इंस्टीट्यूट में। These will be retained by the Institute for Registration and Verification by Punjabi University Patiala. Why so? Because जो ये AIL है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, ये एफिलिएटेड है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो वहां पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब कलेक्ट कर लिए जाते हैं और वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पर के पास भेज दिए जाते हैं। सो देन इन देयर यू आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगले 5 साल के लिए सबमिट हो जाएंगे इंस्टीट्यूट के पास। जब आप 5 साल बाद वहां से अपनी डिग्री लेकर निकलते हो, तब आपको वो रिटर्न किए जाते हैं अलॉन्ग विद द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये प्रोसीजर आपका होता है। Candidates who are offered admission must deposit the fees in full within 48 hours. तो आपका अगर एडमिशन हो गया है, काउंसलिंग के बाद आपके पास 2 दिन होंगे, 48 आवर्स है, तो यू हैव 2 days टू पे योर होल फी फॉर द फर्स्ट ईयर अलॉन्ग विद योर हॉस्टल फी। एंड जैसे ही पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर डिले नहीं करना होता बिकॉज ये डेडलाइन फिक्स होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उनको 48 आवर्स के अंदर अपना एडमिशन फी पे नहीं करते हो, अपना जो भी ट्यूशन फी है वो पे नहीं करते हो, देन आपकी जो सीट है वो दूसरे आपसे नेक्स्ट कैंडिडेट को जो है अलॉट कर दी जाती है। सो दिस इज द बेसिक गाइडलाइन, दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस जो इन्होंने दी हुई है एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स यू गाइज शुड नोट देम डाउन बिकॉज आपके पास काफी कम टाइम है तैयारी करने के लिए एग्जाम की। सो इफ यू गाइज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, then the time is less and you need to study smart. So for that, I will suggest you to take my notes, to purchase my notes from me because they are very beneficial. I myself cleared so many other law entrance exams with the help of those particular notes. And also, I'm making the mock test paper for the students who want to give a practice or basically want to give them so that they can get to know or get an idea about this particular exam, how this happens, because ये एग्जाम ऑनलाइन होता है तो बच्चों को नहीं बच्चों के पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं होते हैं। सो आई माई सेल्फ गिव दिस एग्जाम, आई क्लियर्ड इट विद ऑल इंडिया रैंक 3, सो आई नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑन द basis of that I am making the mock test paper which you guys can purchase from me if you guys are ready with with all of your preparation. But the revision is must. You guys should do that till the D day or the exam day. So अब हम बात कर लेते हैं अदर जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका जो फी है, एडमिशन फी सॉरी ट्यूशन फी एंड द हॉस्टल फी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। So basically, these people offer two programs there in their institute. First is BLLB, which is a 5-year program, and then another one is LLM, which is a 1-year program. Other than this, uh, attendance rules are very strict. Minimum 75% attendance is required as per the university rules in their semester examination. So आपको अपनी अटेंडेंस पूरी तरह करनी होगी। प्लेसमेंट सेल भी उनके पास है प्रॉपरली। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके क्लासरूम्स की, जो भी इंफ्रा है, कंप्यूटर लैब्स है, इन सब चीज़ों के आपको ग्लैंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट पैरा। These all are trophies or the other type of cash rewards and awards जो भी scholarships वहां पर आती हैं बच्चों के लिए, मेजरली आर्मी पर्सोनल के जो अवार्ड्स होते हैं उनके लिए, तो काफी सारी scholarships वहां पर आती रहती है। एंड
इसके थ्रू आप जो है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आप ये स्कॉलरशिप्स भी अवेल कर सकते हैं, as and when you fulfill all these demands as notified by them in their prospectus. बाकी यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है, which you guys can go through once. और ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल में रहना ही होगा। बट इफ यू बिलोंग फ्रॉम चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, अगर यहाँ से कोई 3 प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, देन इन दैट केस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट, इफ यू बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कि आप हॉस्टल में ही रहेंगे, बट ओनली दीज 3 सिटीज। अगर ये सिर्फ 3 सिटीज से आप बिलोंग करते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में नहीं रह आपको रहना मैंडेटरी नहीं है। बाकी सभी को हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स कैन शिफ्ट टू द पीजीज और समथिंग लाइक दैट, बट फर्स्ट ईयर इज मैंडेटरी। एंड अदर देन दिस, आपका हॉस्टल अकोमोडेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि किसके बेसिस पर होगा। जब आपका काउंसलिंग होगी, जब आपको रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट में, तभी वह आपका हॉस्टल प्रोसेस कंप्लीट होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आपको अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल करनी होती हैं। और एक कोड ऑफ कंडक्ट है इंस्टीट्यूट का, जो कि फॉलो किया जाता है फॉर नाइट आउट पास और फॉर टेकिंग द लीव्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज ये आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर दैम। अदर देन दिस, आपका जो थ्री इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एन एकेडमिक बैकलॉग फॉर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 50% पासिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एज पर पंजाबी यूनिवर्सिटी, देन ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हॉस्टल अलॉटमेंट। तो अगर आपका 12th में 50% भी नहीं है, तो आप पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई इलनेस से सफर कर रहे हैं और आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, क्लोज सुपरविजन चाहिए, देन इन दैट केस आपको हॉस्टल अलॉटमेंट डिनाई किया जा सकता है। आप फिर अपना जो भी इलनेस है उसका ट्रीटमेंट जिस भी तरह आपका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। देयर इज नो सच compulsion of taking the hostel then. Then rules may be subject to change in the wake of any endemic or pandemic, as we have all seen that during the tenure of 2020 to 21, सभी colleges and institutes बंद हो गए थे, so that clause is also has also been added by them. बाकी ड्रेस कोड ऐसा कोई दिस इज नॉट अ फिक्स वन। बेसिकली मैं आपको ड्रेस कोड बता देती हूँ। जो यूजुअली होता है वहाँ पर, आपको वीक में 2 days फिक्स होते हैं, व्हेन ऑन दोज 2 days you guys have to wear the your formal dresses or formal uniform, that is black blazer, black pant and white shirt along with the AIL neck tie or cravat, uh, and black leather shoes and black socks, all these things. But on other days, on regular days, you can wear as per your comfort. So this is the thing. बाकी एंटी रैगिंग रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में। आज का जो ये टाइम पीरियड है, ड्यूरिंग दिस टाइम, जो भी एंटी रैगिंग रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। इवन एवरी इंस्टीट्यूट में, एआईएल में ही नहीं, सभी जगह ये यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काफी रैगिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। सो रैगिंग इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसको आप, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो उनको ब्रीच करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज देयर कैन बी charges of offense against you in that case. Other than this, बात करते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो द गुड थिंग इज कि जो सीट्स पहले 100 हुआ करती थी, वो अब इंक्रीज करके 120 कर दी गई है। सो पहले आपके पास 100 सीट्स हुआ करती थी इन टोटल इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, और वो 100 सीट्स के ऊपर एक बच्चे को अपना वी कैन से दैट एग्जाम क्लियर करके compete करना होता था बच्चों से। लेकिन अब सीट्स बढ़ा दी गई, 120 सीट्स हो गई हैं, जिसमें से 90 सीट्स जो है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल के वार्ड्स के लिए रखी गई हैं। पहले ये जो सीट्स थी, ये पहले हुआ करती थी 75, बट अब ये इंक्रीज करके 90 हो गई है। पंजाब रेजिडेंस सिविल कैटेगरी की सीट्स पहले 20 हुआ करती थी, जो कि इंक्रीज करके अब 24 हो गई है। और ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की सीट्स पहले 5 हुआ करती थी, जो इंक्रीज होने के बाद अब 6 हो गई है। तो दिस इज द थिंग कि जो वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स
पर्सोनल है उनके पास भी काफी चांसेस बढ़ गए हैं, और ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के पास भी अब चांसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज अर्लियर देवर 5 सीट्स, नाउ देयर आर 6. बट विदिन this seats of within these 90 seats there is sub distribution, जो कि है इंडियन आर्मी के लिए 86 सीट्स रिजर्व है. इट मींस इफ योर फादर इज इन इंडियन आर्मी देन you have to compete on these 86 seats. But if he or she is in Indian Navy, then in that case there is one seat reserved for that candidate or the world. And then for Air Force, Indian Air Force candidate, there are 3 seats. तो बेसिकली ये सब डिवीजन देखने को अब मिलता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था. लास्ट ईयर से ये सब डिवीजन देखने को मिला है. पहले earlier there were only seats for wards of Indian Army, seats reserved for Indian Army, but now for Indian Navy and Indian Air Force are also given here. एक सीट इंडियन नेवी के वार्ड के लिए है और 3 सीट्स इंडियन एयरफोर्स के वार्ड्स के लिए है. उसके बाद जो पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी होती है उनका एडमिशन क्लास 12th के जो परसेंटेज होती है उसके बेसिस पर होता है. तो क्लास 12th में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी परसेंटेज आपकी बनी है, देन इन दैट केस यू डू गाइस डू गेट एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. 24 seats, but from for this thing, for getting admission on these seats, you guys have to belong from Punjab. You guys must have the domicile of Punjab. तो ये होना कंपलसरी है. बाकी ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के पास सिर्फ 6 सीट्स होती हैं, जो कि इस वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी नहीं है. उनके पास सिर्फ 6 सीट्स होती है, उनको 6 सीट्स के ऊपर compete करना होता है. So this is the basic seats distribution, which is very important to remember if you guys are sitting for this particular exam. बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. तो अगर आपने एज पर द पंजाबी यूनिवर्सिटी लेटर आपने क्लास 12th एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 45% मार्क्स स्कोर किया है, देन if you are from Punjab School Education Board or any other equivalent examination which is recognized by the university and securing at least 45% marks, then in that case you are eligible for sitting for this particular exam. And other than this, if you have obtained your 10 plus 2 through open university system without having any basic qualifications for pursuing such studies, then in that case you are not eligible for admission in law courses in this particular institute. So this thing needs to be remembered. तो अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से अपना 10+2 कंप्लीट किया है, then in that case you are not eligible. The applicants applying for appearing for the qualifying examination are allowed to take AILET 2025 provisionally, subject to the condition that their candidature shall stand cancelled in case they do not pass the final exam. So अगर आप क्लास 12th के या 10+2 के एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, and even if you are sitting for AILET 2025, then in that case your your admission stand cancelled. ठीक है, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा. Then the third point is, in case an applicant has passed a qualifying examination from board or university whose degree has not been notified as equivalent to Punjabi University Patiala, then he or she will have to produce the eligibility certificate from Punjabi University Patiala at the time of interview. So basically जो ICSC, CBSC या आपका स्टेट बोर्ड है, वो अगर पंजाब जो भी बोर्ड्स को पंजाबी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती है, आपने अगर वहां से अपना 10+2 किया है, देन वेल एंड गुड. बट अगर आपने ऐसे बोर्ड से नहीं किया है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती है, तो आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहां से अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर लेकर आना होगा. दैट यू हैव टू शो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. अगर आप वो शो नहीं करते हैं, आप वो नहीं दिखाते हैं, तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो दिस थिंग नीड्स टू बी रिमेम्बर कि आपको अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आना होगा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, इफ योर बोर्ड हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज इक्विवेलेंट टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. ओके. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए एंड दे डू गेट द एडमिशन बिकॉज सीबीएसई इज अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी. Then, candidates whose declaration of results is delayed should apply well in time to the concerned board of examination to forward a confidential result directly to the principal or AIL. The responsibility to ensure its timely dispatch will be that of the candidate only, and delayed receipt of result shall render the candidate ineligible for
एडमिशन। तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डिले हो गया है और आपका जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, देन इन दैट केस व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आपको अपना एक वी कैन से एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवा करके प्रिंसिपल के पास एडमिट सबमिट कराना होगा एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। लेटर ऑन जब आपका रिजल्ट आ जाए देन यू हैव टू सबमिट दैट प्रॉपरली टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपका जो ये एडमिशन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। 86 सीट्स फॉर वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी पर्सोनल, 1 सीट फॉर वार्ड ऑफ इंडियन नेवी पर्सोनल, 3 सीट्स फॉर वार्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल, 6 सीट्स फॉर ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी। इन सभी का एडमिशन ऑनलाइन लो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो अगर आप आर्मी पर्सोनल के वार्ड भी हैं, स्टिल इन दैट केस यू गाइस हैव टू गिव द एग्जाम। एग्जाम आपको देना ही होगा। सिर्फ एग्जाम वो नहीं देंगे जो कि पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका 10+2 के मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा। फॉर दैट दे हैव टू बी the residents of Punjab. They are eligible under this category only on the basis of domicile of state of Punjab. तो वो उनको दिखाना होगा at the time of their admission। और वो कैंडिडेट्स होते हैं जो AIL नेट को क्लियर कर लेते हैं, दे हैव टू जॉइन फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एज पर द मेरिट और एज पर दियर रैंक, एंड एडमिशन विल बी ग्रांटेड ओनली इफ द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग, जो कि मैंने आपको बताया है जीमीट के थ्रू आपकी होगी। आफ्टर दैट यू हैव टू पे योर ट्यूशन फी। तो बेसिकली मैं एक बार समराइज कर देती हूँ इसको। आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद 3 जून को आपका रिजल्ट आ जाता है। 3 जून से फर्स्ट डेट तो सॉरी फर्स्ट काउंसलिंग है उसके बीच में एक टाइम पीरियड होगा। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फी और विलिंगनेस सर्टिफिकेट के साथ पे कर देनी होती है। आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग होती है ऑन द जी मीट सेशन, एंड उसके बाद विद इन 2 डेज आपको अपनी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फी पे करनी होती है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं, जो कि जिसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको हॉस्टल फी नहीं पे करनी होती, सिर्फ ट्यूशन फी पे करनी होती है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सबमिट कर देने होते हैं, जो कि वहाँ से पटियाला यूनिवर्सिटी पहुंचा दिए जाते हैं। आफ्टर योर 5 इयर्स डिग्री, जब आपको आपकी डिग्री मिलती है, आप जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तब आपको आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस दे दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जो आपको एज पर योर नीड्स फुलफिल करना होता है। तो डेडलाइंस ध्यान में रखना ज़रूरी है, प्लीज़ डू रिमेंबर दैम। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर द सबमिशन ऑफ दिस एडमिशन फॉर्म। ये ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये बेसिकली 2 आवर्स का टेस्ट होता है, एंड इसमें आपके 4 सेक्शंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में आते हैं। 200 क्वेश्चंस विल बी देयर, 50 फ्रॉम मेंटल एबिलिटी, 50 फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 50 फ्रॉम लो एप्टीट्यूड एंड 50 फ्रॉम जनरल इंग्लिश। सो देयर विल बी 200 क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 10+2 आप पास करके आने चाहिए। उसके बाद आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपको सभी क्वेश्चंस आंसर करके आने होते हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। दिस इज द प्लस पॉइंट कि आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हो तो आप इजीली इसको कर ले जाओगे। Then in case candidates secure identical marks in the final list, so the candidate with higher marks in the qualifying examination means in their 10+2 exams will be preferred. In case of parity at this stage also, the candidate older in age shall be given the preference. तो ये बेसिक क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है क्या होगा after you get the results of this particular low entrance exam। देन आपको सेंटर्स बता दिए गए हैं फॉर द एग्जाम, आगरा, अहमदाबाद, अंबाला, अमृतसर, सो ऑन। तो यहाँ पर सभी सेंटर्स बताए गए हैं। आप अपना जो नियरेस्ट सेंटर है वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते वक्त फिल कर दें, सो दैट आपको अपना नियरेस्ट सेंटर मिल जाए। उसके बाद आपको बताया गए हैं कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर वार्ड्स ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। So the applicant must fall into one of the following categories for admission to Army professional colleges or institutions. Please do
प्लीज मेक देम रेडी ऑल दी सर्टिफिकेट्स जो भी आपको सबमिट करने हैं, बिकॉज ये आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते वक्त भी सबमिट करने होंगे, एंड लेटर ऑन जब आपका एडमिशन होगा तब वहां पर भी आपको ओरिजिनल सबमिशन इनका देना होगा. सो इफ द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग पर्सोनल विद अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना है, जो कि सर्टिफिकेट उनको सर्टिफिकेट नंबर 1, 5 एंड 6 सबमिट करना होगा एज एप्लीकेबल, विच इज गिवन देयर इन द प्रोस्पेक्टस ओनली. आप ये दिए गए हैं ये सभी सर्टिफिकेट्स जो आपको बनवाने हैं फ्रॉम द ऑफिस, एंड यू गाइस हैव टू सबमिट दैट. चिल्ड्रन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन, अगर आपके पेरेंट्स रहे हैं, granted regular pension, liberalized family pension or disability pension at the time of their superannuation, demise, discharge or release medical board or invalided medical board. This includes children of recruits medically boarded out and granted disability pension to submit certificate number this. तो अगर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं आपके पेरेंट्स, then in that case you have to submit certificate 1, 5 and 6 as applicable. सो सिमिलरली यहाँ पर बताया गया है क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सभी आपको चेक करने हैं अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली एलिजिबिलिटी, बिकॉज आप के फादर या आपके पेरेंट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन है या करंटली अभी सर्विस में है या 10 years की कंटिन्यूअस सर्विस कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गाइस हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स along with the signed of a particular authority which is mentioned in the certificate only. तो सर्टिफिकेट जब आप खोल कर देखेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट सर्टिफिकेट देख लेते हैं एक बार. The certificates are given below. Please. These are the certificates. As certificate number 1, children of serving army personnel having 10 years continuous service in the army, retired or released or discharged after 10 years of service, or killed in action, or died during the service, or disabled in action, or medically boarded out with pension. तो उस केस में आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, एंड इट हैज टू बी फिल्ड बाय ओसी यूनिट और द आर्मी पर्सोनल ब्रांच और डीएसएस एंड ए बोर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस. तो ये आपके पेरेंट्स को पता होगा कि ये जो यूनिट्स है ये कहाँ पर होती है और कहाँ से आपको ये फिल करके साइन करा के लाना होता है. उसके बाद ये उसके बाद ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं ऑन द ऑनलाइन पोर्टल. इस तरह से आपका जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आप प्रिंट आउट लें, उसको फिल करें, उसको फिल करने के बाद ओसी यूनिट से सिग्नेचर कराएं, देन यू गाइस आर एलिजिबल फॉर सबमिटिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर्म. इसके बाद हम देख लेते हैं. Okay, so these are all the weightage criteria given to the wards of Indian Army, Indian Navy or Indian Air Force personnel who are gallantry award winners और battle casualty या physical casualty उन्होंने face की है. Then in that case उनको कितना weightage दिया जाएगा. Suppose आपके पेरेंट्स जो हैं वो परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, देन इन दैट केस 5% वेटेज विल बी गिवन टू दैट, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर 4 सबमिट करना होगा. तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज वेइंग क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं. एंड applications without supporting documents or with incomplete documents will not be considered for the weightage. तो अगर आपको weightage, if you belong from this category, then weightage will be given to you. But for that, you guys have to submit the required certificate number 4. Applicants are advised to read the instructions carefully and keep correct supporting documents ready for uploading at the time of filling the application form. तो जैसा मैंने आपको बताया, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपने जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं वो तैयार रखें और उसको ऑनलाइन फिलिंग करते वक्त सबमिट कर दें. तो ये यहाँ पर सभी गाइडलाइंस आपको प्रॉपरली बताई गई है. आप इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, एंड देन you guys will have a clear understanding in your mind about this particular thing. अब जो भी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन आफ्टर योर एग्जामिनेशन. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो फॉर इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द काउंसलिंग प्रोसेस विद यू गाइस. तो अदर वी वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑन.
तो ये बात का काम है, ये आपको जब सबमिशन करना होगा डॉक्यूमेंट्स का तब का काम है। अभी हम क्या देख लेते हैं, एलएलएम के लिए यहाँ पर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 15 सीट्स आर देयर and there is only one seat for all India general category and 12 seats are reserved for Indian Army, Indian personnel category, Indian Army personnel, wards of Indian Army personnel, and the two seats are for Punjab residents civil category. So this is the thing which is given over here. एंड दियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आल्सो गिवन, वो उनके लिए है। अब हम देखते हैं 2025 टू 26 सेशन के लिए फी स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इन्फॉर्म दिस दैट they do increase their fee, the annual tuition fee, by 3 to 6% each year। तो ये आपकी इंक्रीज होती जाती है, जैसे कि लास्ट ईयर कम थी, इस साल बढ़ चुकी है। अगर हम BA-LLB की बात करें, if you belong from army category, then in that case your total college fee will be 1,92,805. But if you belong from all India civil category, then in that case your total college fee will be 2,31,427। ठीक है, these are the one time charges जो आपको पे करने हैं। वन टाइम चार्जेस ये 5 साल के लिए सिर्फ एक बार आप पे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से, यानी कि फ्रॉम सेकंड ईयर, योर फी विल बी दिस दिस विल बी योर एनुअल चार्जेस। ठीक है, तो ये आपकी एनुअल फी हो जाएगी, बट फॉर दिस ईयर यू हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ इतना इफ यू बिलोंग फ्रॉम आर्मी कैटेगरी एंड दिस मच फ्रॉम इफ यू बिलोंग फ्रॉम सिविल कैटेगरी। उसके बाद हॉस्टल चार्जेस की बात करते हैं, तो हॉस्टल का भी वन टाइम चार्जेस अलग से पे किया जाता है, विच इज 28,233 फॉर द वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड फॉर सिविल कैटेगरी 34,000 समथिंग। टोटल एनुअल चार्जेस अगर हम बात करते हैं हॉस्टल के, तो वो आपका हो जाता है 1,03,38 फॉर आर्मी कैटेगरी एंड 1,11,492 फॉर ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी। ग्रैंड टोटल अगर हम बात करें फॉर दिस ईयर, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर द फर्स्ट ईयर you guys have to submit the fee of 3,21,376 if you belong from army category and 3,76,954 if you belong from civil category। So this much fee has to be submitted। इसके अलावा यहाँ पर LLM का भी दिया हुआ है, which is not that much। Annual charges or grand total that they have to pay is 2,93,000, sorry, 9,322। So this much amount they have to pay because LLM is of 1 year only, तो यही उनको पे करना होता है। बेसिकली मैंने BA-LLB का आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ये फी इंक्रीज होती है, दिस आई वांट टू लेट यू नो। ये फिक्स नहीं होता, यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है 3 to 6%। Other than this, the note is also given here over here that for a AC room, you guys have to pay extra charges of rupees 6,300 per student and rupees 3,150 per student for double shared room। The fee structure is subject to revision at the discretion of management, as I have already informed you। Baki other information or other facilities are also given over here, that lunch is compulsory for day scholars and will be charged as per the messing contract because आपकी classes 4 बजे तक चलती हैं। तो जो लंच है वो डे स्कॉलर्स के लिए भी, डे स्कॉलर्स उनको बोला गया है जो चंडीगढ़, मोहाली या फिर जो ट्राई सिटी मेंशन की गई है वहां से बिलोंग करते हैं, एंड दे कैन अटेंड द कॉलेज फ्रॉम देयर होम ओनली। उनको हॉस्टल की नीड नहीं होती, वो सभी बच्चों को लंच के लिए पे करना होता है। लंच इज कंपलसरी फॉर दैम, तो वो लंच वहां पर अपना करते हैं कॉलेज के मेस में। बाकी दे कैन लीव आफ्टर दियर क्लासेस, जो कि 4 o'clock ओवर हो जाती है। अदर देन दिस, यूनिवर्सिटी फी जो है उसमें इंक्लूड होती है आपकी एग्जामिनेशन फी फॉर द 2 semesters, रजिस्ट्रेशन फी, एलिजिबिलिटी फी एक्सेट्रा, विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। And also students are advised to buy the books and possess their own laptops। Collection of fee की अगर हम बात करें, so new admissions total fee has to be submitted at the time of admission only, as I have told you। बट सेकेंड से फिफ्थ ईयर तक आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको पूरी फी एक बार पे करनी होगी। जो ये टोटल चार्जेस मैंने आपको बताए हैं, ये वाला, ये चार्जेस आपको पूरा एक बार में पे करना होगा। बट
फॉर फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ ईयर आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मोड दिया गया है, मोड एंड शेड्यूल फॉर द ऑफ पेमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो जो भी फी है वो ऑनलाइन पे होगी, और ये आपका वन टाइम चार्जेस के चार्जेस बताया गया है जो आपको पे करना होता है। तो इतना जो भी आपका कैटेगरी है उसके बेसिस पर आपको इतना वन टाइम चार्जेस पे करना होगा। और अगर फी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो AIL की वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। Other than this, Indian Army Education Loan Scheme for wards of serving army personnel is also available. For detail, they can refer to the institute website. तो अगर आप इंडियन आर्मी वार्ड है और आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, देन इन दैट केस दैट इज आल्सो अवेलेबल। उसके लिए आपको वेबसाइट से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आपका मैंने जैसे आपको बताया 5 इयर्स के बाद जैसे ही आप अपनी डिग्री कलेक्ट करते हैं तब आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको विदड्रॉ कर दिए जाते हैं, लौटा दिए जाते हैं। उसके बाद रिफंड ऑफ फी का अगर हम देखते हैं, अगर आपका कहीं और एडमिशन हो जाता है और आपको अपनी फी रिफंड करानी है, then in that case there is some criteria given over here. Willingness certificate and the registration fee, refund of registration fee before the commencement or the cutoff date, and procedure for the refund of fee. The refund will be made as per the latest applicable guidelines which are there on the UGC website. फी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देती है। और जो भी रिवाइज्ड फी होती है वो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं है कि रिवाइज्ड फी है तो वो सिर्फ जो आप है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी और जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं आपसे पहले जिनका एडमिशन हो चुका है उनके ऊपर नहीं होगी। नहीं, रिवाइज्ड फी सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बस इंक्लूड किया है अपने प्रोस्पेक्टस को। दीज आर योर प्रोफेसर्स हु are present in the faculty of law there. So you can see them here. Other than this, this is the administrative staff. Things about the placement cell and other things is also given here. Over here, committees वगैरह के बारे में आपके seniors आपको बता देते हैं, as and when you get the admission there. तो आपके सीनियर्स आपको सब कुछ बताते ही हैं। बाकी उनका जो रिपोर्टर क्वार्टरली न्यूज़लेटर वगैरह एनुअल मैगजीन वगैरह ये सब चीज़ें पब्लिश होती हैं विच यू गाइस कैन गेट टू नो फ्रॉम योर सीनियर्स ओनली। दे आर इन बेटर पोजिशन टू टेल यू। अदर देन दिस सर्टिफिकेट्स विच आई हैव ऑलरेडी देखे, आप सोसाइटीज का देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है सोसाइटीज के बारे में। दे हैव AMCS दैट इज AIL मूड कोर्ट सोसाइटी, AIL डिबेटिंग सोसाइटी जिसका नाम डेबसोक है, AIL इको क्लब जिसका नाम AEC है, AIL लीगल एड सेल ELEC, AIL कल्चरल सोसाइटी ACS, sports committee they have. So these are the different societies that they have in their institute. Other than this, I have informed you about this certificate thing. This is the studies or the scheme of studies. This will be your curriculum basically for the 5 year law program and for LLM 1 year program if you are pursuing that from there. Baki certificates are given over here. Please do fill them and get them signed by from the OC unit if you want to sit in this exam. तो ये आपका यहाँ पर prospectus finish हो जाता है, and I'm very happy to discuss this prospectus with you guys. I hope आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए for this particular exam वो required information आप तक पहुंच गई है। और I uh, I would say that please do share these videos as much as you can so that the students who want to sit this for this exam can get the correct information. And please do subscribe my channel, press the like button if you guys are liking these sessions. I'll be coming up with more such videos later on, and I will be guiding you in throughout your counseling process for your exam also. You guys can DM me on Telegram as well for purchasing the mocks and for purchasing my notes as I have informed you about them earlier in the video. So thank you so much. इस वीडियो में इतना ही. Please do subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye guys.